تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات کتب میں موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی کال لیں گے اور کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی کال دیجیے۔ یہ مجھے حسام تجارت سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جو دودھ میں پانی ڈالتے ہیں، اگر گاہک کو پتا ہو کہ یہ پانی والا دودھ ہے تو وہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال واضح نہیں ہے، گاہک کو پتا ہو تو کیسا؟ جی، دودھ میں جو پانی ڈالتے ہیں اگر کسٹمر کو پتا ہو تو کیسا؟ تو سوال نہ ہوا نا۔ جی سوال یہ کرنا چاہیے تھا جی کہ پانی ڈالنے کے باوجود دودھ بیچنا کیسا، ٹھیک ہے۔ جبکہ گاہک جانتا ہو۔ معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ گاہک کو یہ ضرور پتا ہے کہ پانی ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے طے کیا ہوا اپنے ذہن میں۔ یہ ایک طے کیا ہوا اس نے، ٹھیک ہے لیکن یہ طے نہیں کیا ہوا کتنا ڈالا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بعض علامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دودھ میں پانی کم ڈالا گیا ہے یا زیادہ ڈالا گیا ہے۔ جی بعض اوقات ملائی جو ہے نا وہ موٹی اور پتلی آتی ہے، بعض اوقات ویسے بھی جو دودھ ہے اس کو اگر یوں دھار اس کی بنائیں یا انگلی سے ٹپکائیں، جی انگلی سے ٹپکانے میں بھی جو ہے وہ دودھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ بتا دیتا ہے کہ اس میں کتنا پانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو ماہر لوگ ہیں ان کے ہاں اور بھی علامات ہوتی ہوں گی۔ تو اگر کوئی اتنا پانی ڈالتا ہے کہ جتنا گاہک کے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر 5 کلو میں 6 ٹاک پانی ڈال دیا ٹھیک ہے۔ یا 1 پاؤ ڈال دیا، ٹھیک ہے، اور گاہک بھی یہ سمجھتا ہے کہ اتنا تو ڈلتا ہی ہے، ایک معمولی مقدار ڈالی۔ اتنا تو ڈلتا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گاہک کا حق متاثر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کو معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی آئیڈیل صورتحال تو نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن یعنی اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہم۔ جس طرح اے اور بے کیٹیگری کے مال ہوتے ہیں، جی ہمیں پتہ ہے کہ جناب ہم یہ مال خرید رہے ہیں یہ بی کیٹیگری کا ہے، صحیح ہے۔ تو اب وہ بتانے والے پر یہ نہیں ہے، جب اس نے یہ بتا دیا کہ یہ بی کیٹیگری کا ہے اب اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو دودھ کے معاملے میں اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ان مواقع پر علماء نے یہ کہا ہے کہ یہاں جو دھوکہ دینے کا گناہ ہے وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ خریدنے والوں کو معلوم ہے، لیکن یہ باب بڑا وسیع ہے، صحیح۔ یہ یعنی اس پر قیاس نہ کیے جائیں کہ مفتی صاحب نے اس موقع پہ یوں رعایت نکالی ہے، یوں بیان دیا ہے، یوں مسئلہ بتایا ہے، لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ورنہ جو اطلاعات ہیں وہ تو بڑے عجیب و غریب ہیں، اپنے اندازے لگا کے اسی پہ جو ہے اور چیزوں پر اور قیاس چیزوں پہ اور اطلاق چیزوں نہ پر قیاس کرے نہ گا۔ کیا ٹھیک جائے۔ ہے۔ ورنہ ایسے بھی اطلاعات ہیں کہ جناب فروٹ کے اندر جو ہے نا وہ انجیکشن لگائے جاتے ہیں، جوتوں کی پالش لگائی جاتی ہے چمکانے کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملائی جاتی ہیں، تو ہر جگہ ایک جیسا حکم نہیں ہے۔ صحیح۔ دودھ کے تعلق سے ہم نے ایک حکم بیان کیا ہے، یہاں ایک ضرورت بھی ہے
جی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس کو برف ملانا ہی ملانا ہے، ٹھیک ہے، برف رکھنی ہے دودھ میں یعنی ڈالنی جو دکان کے اندر ہے جی اس نے چلو فریج میں رکھ دیا، صحیح ہے لیکن جو پھیری والا ہے جی وہ برف ڈال کے ہی پھیری لگاتا ہے، صحیح اس کے علاوہ تو وہ لگا ہی نہیں سکتا، صحیح دودھ پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے تو یوں دودھ کا معاملہ قدریں مختلف ہے، پھر ہر چیز کے اندر ایک جیسے احکام نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے ابھی چند روز پہلے ایک صاحب پوچھ رہے تھے جی خوشبو وہ بناتے ہیں بی کیٹیگری کے بناتے ہیں، جی تو میں نے اس پر کلام کیا، لیکن وہاں ایک بات واضح تھی کہ بی کیٹیگری کی خوشبو بنانے سے گاہک کو معلوم ہے، اگر ٹھیک ہے وہ استعمال کر لے گا، صحیح ہے لیکن اس سے معاشرتی نقصان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اس کے برخلاف کوئی غذا کے اندر مثال کے طور پر کچھ کوئی ملاتا ہے کھوپرے کے اندر جو ہے نا وہ آٹا ملاتا ہے، صحیح ہے، یا کوئی مسالے کے اندر جو ہے نا وہ چائے کی پتی میں اینٹیں چنے پیس کے کے ڈالتا چھلکے ہے، اینٹیں پیس کے ڈالتا ہے۔ جی اب اینٹیں جو پیس کے ڈالی جائے گی، جی جی اس سے تو سخت اذیت اور مضر صحت ہے۔ جی تو ملاوٹ کے ہر جگہ ایک جیسے نقصانات نہیں ہوتے، جی جدا گانا مواقع پر اس کے جدا گانا نقصانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جہاں جتنے نقصانات ہوں گے اس میں پھر اتنی شدت کے ساتھ مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ جی ایسا ہے کہ میری نا ایک کیک شاپ ہے، تو میں نے نا آج ایک غلط کام کیا کہ میں نا کیک سیل کرتا ہوں، میں نے 3 پاؤنڈ والا کیک جو ہے وہ 4 پاؤنڈ والا کیک بتا کے تو کسٹمر کو دے دیا ہے۔ تو ابھی جو میں نے 1 پاؤنڈ کم دے کے زیادہ پیسے لیے، ان پیسوں کا میں کیا کروں؟ اچھا جی، اس سے اب 300 والا کیک 400 میں دے دیا 3 پاؤنڈ کا کیک 4 پاؤنڈ کا کہہ کر بیچ دیا انہوں نے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایسا یقینی طور پر خطا کے طور پر ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے، اور اس طرح کی جو غلطی ہے اس میں قابل مواخذہ اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ ارادے اور قصد کے ساتھ نہیں کی گئی، ٹھیک ہے لیکن جو زائد پیسے حاصل ہوئے ہیں انہیں سنبھال کر رکھیں، ٹھیک ہے اس شخص کا انتظار کریں، صحیح ہے پھر کسی موقع پر وہ آئے تو جو ہے وہ اس کو دے دیے جائیں۔ ٹھیک ہے اگر وہ نہیں آتا تو بہرحال آخری حل تو اس کا یہی ہوگا کہ بغیر ثواب کی نیت کے اس رقم کو صدقہ کیا جائے گا، ٹھیک یہ اس کو رکھ نہیں سکتے، یعنی صدقہ بھی مستحق زکوٰۃ کو دینا، یعنی صدقہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے عام صدقہ مراد نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک مستحق زکوٰۃ کو دیا جائے گا۔ سوال سے ظاہر ہے کہ ایسا خطا کے طور پر ہوا ہے، جی تو آئندہ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ کوئی ایسا لوگو ہو، کوئی ڈبے پہ کچھ لکھا ہوا ہو، ایسی غلطی کا کوئی امکان امتیازات اسے لگا دیے جائیں تاکہ پہچان رہے کہ یہ کتنے پاؤنڈ کا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ سر میرا سوال یہ تھا کہ میں کیبل آپریٹر ہوں، سافٹ ویئر کا کام کرتا ہوں، کمپیوٹر سافٹ ویئر کا، جس میں میرے کام میں فلمیں وغیرہ بھی چلانا آتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے، اور اگر میرے لیے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، جواب لیتے ہیں۔ عام طور پر جو کیبل چل رہے ہوتے ہیں ان کیبل کے اندر کچھ لوکل کیبل بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو یہ لوگ خود چلا رہے ہوتے ہیں، اگر وہ نہ بھی ہوں جی تب بھی یہ ہے کہ جتنی گنجائش ہوتی ہے کیبل یعنی چینلز کی، جی یہ سارے کے سارے چینل کو لگانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے فلموں کے، ڈراموں کے، اوٹ پٹانگ چینل، جو بھی چینل لگتے ہیں وہ لگانے پڑتے ہیں۔ صحیح ہے تو جو گناہ کا معاملہ ہے، گناہ کی ترویج اور اشاعت، جی اس میں یہ براہ راست معاون اور مددگار بنتے ہیں۔ ٹھیک پھر جیسا کہ انہوں نے خود کہا کہ جو اور چینل ہیں اس کے علاوہ، جی یعنی جو ریگولر چینل کے علاوہ جو ہوتے ہیں جی اس کے ذریعے بھی یہ فلمیں چلاتے ہیں اور لوگوں کو تک یہ گناہ پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جو ان کی ملازمت ہے گناہ کے کام پر اعانت اور مددگار کی ملازمت ہے، ٹھیک تو بلا شبہ یہ جو ملازمت ہے اس کے گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ یہ گناہ پر معاونت ہے، اور گناہ پر جو معاونت کی ملازمت ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہوتی، ان کا یہ کام، ان کی آمدنی یہ حلال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا انہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ میں محمد اشتیاق رضا تاری سردار آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ گھر میں گھریلو میٹر، جو بجلی کا میٹر ہوتا ہے گھریلو، اس پر کام کرنا کیسا ہے؟ قانونی طور پر تو ویسے کام کے لیے، تجارت کے لیے کمرشل میٹر ہوتا ہے، لیکن گھر میں جو گھریلو میٹر اس پر کام کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی،
घरेलू मीटर पर क्या काम कर रहे हैं आप? यानी सब आप कपड़े सी रहे हैं, आपने जो है ना वो फैक्ट्री लगाई हुई है, ठीक है, सोता वाजे नहीं है ना। सही, यानी आमतौर पर जो है वो घर में औरतें कपड़े सीती हैं, जी, ठीक है, हर दूसरे घर में जो है ना कपड़े सिए जाते हैं। सही है, मोहल्ले में कोई एक आध ऐसी औरत होती है जो कपड़े सी रही होती है और सारे मोहल्लेदार आ रहे होते हैं, जी, तो इसको इंडस्ट्री शुमार नहीं किया जाता ठीक है, हमारे उर्फ आम के अंदर। जी, कमर्शियल मीटर के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या नहीं, जुदा गाना बहस है। ठीक है, और ऑलरेडी जब आप एक हदफ को क्रॉस कर देते हैं जी, तो आपका बिल वैसे भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो ज़ाब्ता हमारे सामने नहीं है, आपका काम भी सामने नहीं है ठीक कि है, आप घरेलू मीटर पर क्या कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि तार जो है वो वीक होते हैं और आप कोई भारी काम कर रहे होते हैं, जी, तार जो है ना ख़राब हो जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं और पूरे मोहल्ले को उससे अज़ियत पहुँचती है, नुकसान पहुँचती है। यूँ भी मामला ये मामला जो है ना वो ख़राब है। तो इस बारे में आप रहनुमाई लें, कानून क्या कहता है। ठीक है, जो कानून कहता है उसको फॉलो करें। सही। अगली कॉल दी। मुफ्ती साहिब से मेरा सवाल है कि एक शख्स ने दूसरे शख्स के लिए कुछ रकम तोहफे के तौर पर दी, अब जिसको दी है वो भूल गया और जिसको देनी थी उसका इंतकाल हो गया है, अब क्या उस रकम का क्या करें? जवाब इनायत फरमाएं। जी, आपसे फरमाना चाहिए तो जिसको रकम देनी थी उसका इंतकाल हो गया और जिसने दी है जी, उसको याद नहीं है। जी, बीच वाला जो आदमी है जी, जिसकी हैसियत वकील की है, नुमाइंदे की है, ये वकील और नुमाइंदा जो है इसको एक काम सुपुर्द करना था, इंतकाल हो गया तो वो काम करना मुमकिन ना रहा, तो लामहला इसको ये रकम वापस करनी पड़ेगी मालिक को ये रकम वापस करना ज़रूरी है। ठीक, इसलिए कि वो अगर भूल गया हो, कुछ भी हो गया हो, शर्मिंदगी महसूस ना की जाए और ये ना कहा जाए कि जी अब इतने दिनों के बाद मैं लेके जाऊंगा तो वो क्या कहेगा, क्या सोचेगा। बस एक बात ज़हन में बिठा लें जी, कि आज ये आदमी तो ज़िंदा है, अगर ये मर गया तो फिर तो हुकूकुल इबाद का मामला आ जाएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल हो जाएगी। आज ये ज़िंदा है, जो भी शर्मिंदगी का मामला हो फेस कर लिया जाए, आखिरत की शर्मिंदगी से बचना ज़्यादा अक्लमंदी है। ठीक, तो ये इसे वापस करें, यही हल है फिलहाल। वापस करेगा। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि मेडिकल स्टोर में लोकल मेडिसिन बेचना जायज है या नहीं? देखिए मुफ्ती साहब कोई माहिर मेडिसिन तो है नहीं कि आप इतना मुबहम सवाल करें कि लोकल मेडिसिन बेचना। पाकिस्तान में बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, क्या ख्याल है मेरे भाई? लोकल काफ़ी इंडस्ट्री है हमारी पाकिस्तान में जी, बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। अगर आपके कहने का मकसद ये है कि ऐसी दवाइयाँ जो रजिस्टर नहीं है गवर्नमेंट के पास, जी, फिर एक जुदा गाना बात है। लफ्ज़ लोकल तो ना कहें फिर आप। जी, लोकल तो उसके यानी ऑफिशियली तो लोकल उसे कहेंगे जो पाकिस्तान में बन रही है, तो हमारी लोकल मेडिसिन, लेकिन वो ऑफिशियल जी, होती हैं, बाकायदा कंपनीज है, उनके लाइसेंस हैं, रजिस्टर होती जी, हैं, जी, गवर्नमेंट के जो भी प्रोसेस हैं उससे गुजरती जी, हैं। जी, लाइसेंस होते हैं उनके। थोड़ी दवाइयाँ शायद बाहर से आती हैं, वरना तो अक्सर यहीं से मिलती हैं आम दवाइयाँ। अगर इनकी मुराद ये है कि वो दवाइयाँ जिनके बेचने की हुकूमत इजाज़त नहीं देती, जी, जैसे किसी हकीम ने बना ली, कोई पक्की बना ली, कोई ऐसी चीज़ है, तो अगर दवाइयाँ ऐसी हैं जिसके बेचने की हुकूमत इजाज़त नहीं देती, जी, तो बहरहाल उसका बेचना एक बड़ा रिस्क है। जी, यानी वो किस प्रोसीजर से गुजर कर आई हैं, उनके अंदर जो दवा होना है वो पाया गया है, नहीं पाया। मुझसे यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जी जी, एक तो जैसे आपने जो मिसाल दी ना, ये हर्बल की है, तो हर्बल में तो फिर भी रियायत मिल जाती है किसी न किसी हद तक, कानूनी तौर पे भी मिल जाती है। अच्छा, लेकिन इनकी शायद जो मुराद जो मैं समझ सका हूँ और जो मार्केट है, बाज़ दवाएं जो हैं वो स्मगलिंग होकर आती हैं, स्मगलिंग ही का लफ्ज़ कहूँगा मैं, जब चोरी छुपे आ रही हैं तो फिर वो बिकती हैं। उसको तो लोकल नहीं कहेंगे, उसको तो इम्पोर्टेड imported अगर कहेंगे। बेचते हैं, लेकिन उसकी हैसियत वो लोकल से भी बदतर होती है, क्योंकि उसके बारे में कुछ पता नहीं होता यानी ये था। लोकल किसको कह रहे हैं, इसमें इबाहम हाँ, तो इबाहम है। तो आप लोकल किसको कह रहे हैं, हमें तो वाज़ेह नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, एक तोजी हमारे समझ में आई थी कि जो गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर नहीं हुई दवाइयाँ किसी ने अपने तौर पर बनाई हैं और आपने बेचना शुरू कर दी, तो ये तो मामला बड़ा ख़तरनाक है। जब पानी जैसे मामले के अंदर हैं, जी, पूरे मुल्क में शोरा पड़ा हुआ है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो जो पानी बेच रही हैं
اس پانی کے اندر نقائص موجود ہیں، وہ پانی صحت مند نہیں ہے، وہ پانی ایسی چیزوں سے ان کے اندر ملاوٹ کی گئی ہے جو مضر صحت ہیں، تو دوائی تو پانی سے اعلیٰ درجے کی نازک چیز ہے، اس کا معاملہ تو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ اگلی کال دیجیے۔ ایک آدمی ایک پلاٹ لے لیتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ وہاں پہ گھر بنا لے، لیکن کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ وہ پلاٹ اس کو بیچنا پڑتا ہے، اور جب وہ پلاٹ بیچتا ہے تو کیا اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ مطلب ہے اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ جب پلاٹ جس دن بیچا ہے اس دن تو تھا ہی نہیں اس کی ملکیت میں، بیچنے کے بعد تو ملکیت میں رہا ہی نہیں وہ۔ جی، بیچنے کے بعد تو نہیں رہا، لیکن اب جب اس کی نیت تبدیل ہوئی تو اب زکوٰۃ ہوگی یعنی نیت تبدیل ہو گئی کہ بھئی اب اس کو بیچنا ہے، جی بھلے 10 سال گزر جائیں، جی یہ مال تجارت نہیں بنے گا۔ صحیح۔ تو مال تجارت بننے کے لیے کیا ہوگا؟ وہ مال تجارت بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خریدتے وقت نیت پائی جائے، ٹھیک ہے خریدار رہنے کے لیے، پھر بیچنے کا ذہن بن گیا تو بیچنا ایک ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے نیت سے بیچنا نہیں ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ تو جس وقت خریدا اس وقت کی نیت وہ تو کرے۔ ایکٹیویٹی تھی نا، جی خریدا تھا اس نیت سے، ٹھیک ہے اب یہ نیت کر رہا ہے کہ بیچوں گا، جی تو ارادہ ہے صرف، ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے وہ مال تجارت نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ مفتی علی اصغر صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ شراکت کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ شراکت کے لیے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ چلتے کام میں شراکت نہ کی جائے، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دونوں فریقین جب پیسے ملا رہے ہیں جی تو یہ طے کر لیا جائے کہ تناسب کیا ہے، ٹھیک دونوں کے برابر ہیں، کم زیادہ ہے، 40-60 ہے یا کچھ اور ریشو ہے، پھر یہ طے کر لیا جائے کہ نفع دونوں کتنا لیں گے، برابر لیں گے، کم زیادہ لیں گے، اپنی رقموں کے تناسب سے لیں گے، پھر یہ طے کر لیا جائے کہ کام دونوں کریں گے یا کوئی ایک کرے گا، پھر یہ طے کر لیا جائے کہ کام کی نوعیت کیا ہوگی، کرنا کیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے پرچون کی دکان کھولنی ہے یا کپڑے کی کھولنی ہے ٹھیک یا دکان کھولنی ہے یا ٹھیلا لگانا ہے، کام کی نوعیت طے کر لی جائے، ٹھیک اور یہ طے کر لیا جائے کہ جب یہ کام ختم ہوگا تو ہم کن بنیادوں پر ختم کریں گے، ٹھیک ہے یعنی آج وہ چیزیں سوچ لیں گے نا، صحیح ہے۔ تو اس دن جب کام ختم ہو رہا ہوگا جھگڑے نہیں ہوں گے، اس دن آپ کہیں گے یار تو میں نے 10 سال محنت کی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا۔ اگلی کال دیجیے۔ پنجاب کے شہر چنیوٹ سے محمد طیب بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ ایک بندہ کسی کسان کو 6 ماہ پہلے پیسے دے دیتا ہے کہ جو 6 ماہ بعد گندم آپ کی ہوگی، جب آپ اس کو کاٹیں گے تو وہ گندم آپ اٹھائیں گے، تو اس گندم میں سے میں بھی لوں گا، آپ سے خریدوں گا، اور جو میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں یہ آپ رکھ لیں، اور انہی پیسوں کی میں آپ سے گندم لے لوں گا، اور آپ نے مارکیٹ کے ریٹ سے مجھے 100 روپے یا 200 روپے کم ریٹ میں دینی ہے، تو ایسا کرنا کیسا، کیا یہ کام کرنا درست ہے؟ ٹھیک ہے جی، جواب دیتا ہوں جی۔ مسلم نبی اکرم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے جی تو مدینہ منورہ کی جو معیشت تھی جی وہ زراعت پر ڈیپینڈ کرتی تھی، صحیح زراعت زیادہ تھی یہاں پر، ٹھیک ہے خاص طور پر کھجوریں زیادہ تھیں، ٹھیک ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بے سلم کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے یعنی فصل ابھی آئی نہیں ہے، پیسے دے کر سودا کر لیا، پہلے ہی سودا کر لیا، ٹھیک ہے سودا کر لیا، ٹھیک ہے اور پھر جب مال آیا تو مال اس کے حوالے کر دیا۔ صحیح عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پہلے مال دیا جاتا ہے، پیسے ادھار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بے مطلق جو ہے اس کے اندر ایسا ہوتا ہے، ٹھیک لیکن بے سلم یہ ہے کہ پہلے پیسے دے دیے جی اور پھر جو ہے وہ مال بعد میں خریدا جائے گا۔ صحیح اس کی کچھ شرائط ہیں، صحیح 13 کے قریب شرائط امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بیان کی ہیں۔ ٹھیک جو سوال انہوں نے پوچھا ہے اس کے جائز ہونے کی صورت بے سلم ہے، ٹھیک بے سلم کی شرائط کو یہ پورا کر لیتے ہیں تو ان کا یہ معاملہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں جو مارکیٹ کا ریٹ ہوگا اس سے 100 روپے کم رکھیے گا، جی یہ شرط درست نہیں ہے، ٹھیک ہے قیمت متعین کرنی پڑے گی اسی دن جس دن سودا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کہ بھئی گندم کا جو ریٹ ہے آپ نے 400 روپے من ہمیں دینی ہے، ٹھیک ہے مارکیٹ 500 پہ جائے، 300 پہ جائے، 200 پر آئے،
उससे कोई सरोकार नहीं होगा, इबहम ना हो कीमत में, कोई इबाम नहीं होगा। ठीक है, उस दिन आप तय कर लें। सही है, अब मार्केट को छोड़ दें, बाद में मार्केट क्या होगी हर एक का नसीब है। सही है, बिल्कुल फिगर में तय होगी। फिर ये होगा कि जनाब वजन के हिसाब से हमारे यहाँ लेन देन होता है, तो वजन के हिसाब से होगी। फिर बारदाना किसके जिम्मे होगा। ठीक है। सबसे जो अहम शर्त है वो ये है कि 1 महीने से कम की उधार ना हो, यानी माल की जो डिलीवरी है 1 महीने से के बाद का रखा जाए। ठीक, 1 महीने से पहले नहीं हो सकता, महीने से पहले की ना रखी जाए, बेसलम की ये शर्त है। ठीक है। और एक और बड़ी ही अहम शर्त ये है कि वो चीज़ ऐसी हो कि जिस वक्त सौदा हो रहा है जी मार्केट में मौजूद हो। सही। गंदम हमारे यहाँ मार्केट में मौजूद होती है, ठीक है, मार्केट से नापैद नहीं होती। सही। आम का जो मामला है वो इससे मुख्तलिफ है, आम मार्केट में मौजूद नहीं होता। सही। जब ऐसा होता है जैसे मिसाल के तौर पर मुल्तान का आम महीने बाद आता है, ठीक है, मिर्च खास का आम महीना पहले आ जाता है। सही। तो आम मार्केट में आ गया, अब कोई मुल्तान वालों से कर रहा है, अब इसकी गुंजाइश मौजूद है। सही। गंदम जो है, गंदम पाकिस्तान में सबसे पहले हमारे शहर से में निकलती है, ठीक, तकरीबन फरवरी में बाहर आ जाती है। ठीक है। कौन से शहर से? जुड्डो है, नवाकोट है, इन इलाकों में गंदम बाहर आ जाती है। पाकिस्तान में सबसे पहले यहाँ आती है। ठीक है। लेकिन गंदम एक ऐसी चीज़ है कि हमारी मार्केटों में गंदम हर मौसम में दस्तयाब होती है, 12 माह मौजूद रहती है। 12 माह मौजूद रहती है। ठीक। लेकिन कोई ऐसी चीज़ हो सकती है या कोई ऐसे मौसम आ सकते हैं कि जिसमें गंदम ना हो। ठीक। शर्त को फॉलो करना ज़रूरी है कि जिस वक्त सौदा हो रहा हो, जो चीज़ आप खरीदना चाह रहे हैं एडवांस में जी पैसे देकर, तो वो चीज़ उस वक्त उस मार्केट में मौजूद हो जिसका आप सौदा कर रहे हैं। ठीक है। तो ये 2-4 शराइत मैंने बयान की हैं, इससे मिलती जुलती कुछ और शराइत भी हैं। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। हिंद गुजरात जामनगर से मोहम्मद साजिद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि हजरत मैं चॉकलेट का कारोबार करता हूँ, तो उसके अंदर जब किसी को उधार देना होता है माल, तो 10 रुपया 20 रुपया ज्यादा ले सकते हैं और केस के अंदर 10-20 रुपया कम होता है, यानी जो भी रेट चल रहा है वही लेना पड़ता है। तो ऐसा करना कैसा? ठीक है, ऐसा करना कैसा बताते हैं आप? नकद माल सस्ता बेचना, उधार माल महंगा बेचना, ये माल बेचने वाले का हक है। ठीक है, कि वो अपना माल कितनी कीमत पर बेचे, महंगा बेचे, सस्ता बेचे। अगर कोई आदमी नकद माल सस्ता बेचता है तो उसकी अगराज है, उसको पैसा जल्दी मिल रहा है, ठीक है, इन्हीं पैसे से वो दोबारा रोलिंग में लाकर कमा लेगा। ठीक है। लेकिन जब कोई शख्स जो है वो उधार बेचता है तो उसका पैसा ज़्यादा देर तक फंसता है। ठीक है। उलमा ने इस बात की रुख्सत दी है कि नकद माल को कोई सस्ता बेचता है जायज़ है, सही है। उधार को महंगा बेचता है वो भी जायज़ है, ठीक, कोई हर्ज नहीं है। ठीक। अगली कॉल दीजिए। ये सवाल है मुफ्ती साहब की बारगाह में कि अगर कोई शख्स किसी कंपनी में काम करता है और वो जो आइटम सेल करता है उसमें फिक्स एक मिकदार होती है कि ये इसके अंदर ये मिकदार इतनी तादाद में है, तो जब वो बंदा सेल में नहीं करता, दुकानों पर देता है, तो उस आइटम में कभी कभार ऐसे होता है कि जो मिकदार लिखी हुई होती है अंदर उसकी तादाद कम होती है, तो दुकानदार वो डिमांड करता है कि भाई हम ये सेल आपसे लेते हैं, आप हमें देकर जाते हैं, जो चीज कम है वो आप दें। तो हम उनसे ये कहते हैं कि जी ये तो पैकिंग पीछे से कंपनी देती है, तो अब हमारा ये देना नाजायज होगा या हमारे ही जिम्मे जो मिकदार अंदर कम है, जबकि ये कंपनी ने लिखी हुई भी होती है और वो मिकदार देने की पाबंद भी है, लेकिन कंपनी नहीं देती और दुकानदार हमसे डिमांड करते हैं, तो हमारा ये देना हम जायज है या हम पर ये प्रेशर होगा? इस मामले में हमारी रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए। ठीक है जी। जिस तरह वो जल्जला आता है ना तो फिर कुछ झटके आते हैं जी, क्या कहते हैं, आफ्टर शॉक। आफ्टर शॉक्स। आफ्टर शॉक्स। तो एक तो होती है तिजारत, ठीक है, और एक तिजारत के बाद पैदा होने वाले मामलात होते हैं। ठीक है। हमारे फ़ुक़हा कराम रहिमहुल्लाह ने तमाम की तमाम जहतों पर तफसील से कलाम फरमाया है। ठीक है। जैसे फ़िक़्ह की सबसे बड़ी किताब जो पढ़ाई जाती है वो हिदाया है। ठीक है, दर्स निज़ामी। दर्स निज़ामी के अंदर, और मैंने मुतअद्दिद बार उसके जो ख़रीद फ़रोख्त के मामलात में पढ़ाए हैं, बहुत सारी मरतबा पढ़ाए हैं। जिस चैप्टर को भी उठाइए जी, उस चैप्टर के 2 हिस्से होते हैं। सही। पहले हिस्से के अंदर उस चैप्टर के बुनियादी मसाइल, जुज़ियात, मुकदमों, बुनियादी बातें बयान की होती ठीक है।
ख्वाब सलम हो, मुदारबत हो, शिरकत हो, खैर ऐब हो, आखिर के अंदर कुछ मसाइल वो होते हैं जिसका ताल्लुक फरीकैन के तनाज़े से होता है। ठीक है, ऐसा होगा तो कैसा होगा? कि जनाब एक चीज़ के अंदर ऐब निकल आया, दूसरा इनकार कर रहा है, नहीं तुम जब लेकर गए थे तो सही थी। ठीक है। मुदारिब ने कहा कि जी नफ़ा तो हुआ ही नहीं है, इन्वेस्टर कहता नहीं हुआ है। ठीक है। कोई चीज़ जो है ना वो किराए, मिसाल के तौर पर पंचचक्की किराए पर दी। जी। पहले की पंचचक्कियाँ जो हैं वो बिजली से नहीं चलती थी, पानी से चलती थी। ठीक। जिसने किराया पर ली तो उसने कहा कि जब से तुमने मुझे किराए पर दी है पानी नहीं आ रहा था नहर के अंदर। वो क्या है, आ रहा था पानी, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये कहलाते हैं बाहम तनाज़ात। ठीक है। जब भी कारोबार होता है तो उस कारोबार में कुछ हकीकी और कुछ गैर हकीकी तनाज़ात जन्म लेते हैं। ठीक है। हकीकी से मुराद ये है कि वाक़अतन ऐसा ही निकला हो, नेचुरल होता, यानी उसके अंदर चीज़ कम निकली हो तो उसको दावा करने का हक हासिल है। सही है। और गैर हकीकी ये है कि एक आदमी झूठ मूठ में दावा कर दे ताकि बिला सबब के माल हासिल करना चाहता है, वो माल मुफ्त हासिल करना चाहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि खरीदो फरोख्त नाजायज़ हो जाएगी। जी। लेन देन नाजायज़ हो जाएगा। लेन देन जो हुई, खरीदो फरोख्त जो हुई, जो भी तकसीम कारी हुई वो तो ठीक हुई। ठीक। अब एक नई सूरत सामने आती है। अब दो अफराद का तनाज़ा हुआ है। जी। एक मुद्दई है, दूसरा मुद्दा अलैह है। जी। मुद्दई को अपनी बात शहादत के साथ बयान करनी पड़ेगी। जी। दुकानदार को गवाह पेश करने पड़ेंगे कि देखो मैंने दो गवाहों के सामने तुम्हारी ये चीज़ खोली जी और ये चीज़ कम निकली है। जी। तो ये शख्स अपनी कंपनी में सारा मैटर पेश करेगा कि देखिए ये दुकानदार का बयान है और ये चीज़ है, वो अपनी कंपनी में पेश करेगा। कंपनी भी जो है ना वो डाउट का शिकार होगी कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा ये सेलमैन और दुकानदार मिलकर हमें चूना लगा रहे हों। जी। तो कंपनी भी जो है वो फिर अपनी तफ्तीश करेगी, क्रॉस चेकिंग करेगी। तो तनाज़ात हर जगह पैदा होते हैं। तनाज़ात को हल करने के शरीयत मुतहरा ने मुकम्मल तरीके दिए हैं। असल चीज़ ये है कि उन तनाज़ात को आसान तरीके से हल करना। अब हमारे यहाँ चोर बाज़ारी तो बहुत ज़्यादा है। जी। मैं एक ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक इस्लामी इदारे की ऑडिट रिपोर्ट, जी, इस्लामी मालियाती इदारा था। ठीक है। वो SACP ने शाया की अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब उसके अंदर निज़ाम की खराबी नहीं थी, नीचे के लोगों की खराबी थी। जो एडमिन थे या जो नीचे के लोग थे, ठीक है, जो वर्कर्स हैं, उनकी खराबी थी कि उन्होंने क्लेम जारी किए हुए थे मुख्तलिफ। ठीक है। कि जनाब हमने क्लेम जो है वो लोगों को दिए हैं। कुछ क्लेम की तारीखें थी संडे की। ठीक। संडे के दिन तो इदारा ही बंद होता है। सही। कुछ वो मामलात थे कि वाकयात बाद में हुए हैं जी, रिकॉर्ड के हिसाब से, क्लेम पहले दिए गए हैं। सही। तो साफ जाहिर था चोर बाजारी थी। तो वो उसको इदारे, जो हुकूमती इदारा है जो वॉच करता है इन चीज़ों को, जी, उसने उस कंपनी को नोटिस जारी किया हुआ था और उसके खिलाफ तादीबी और कानूनी कार्रवाई की हुई थी और अपने वेबसाइट पर डाला हुआ था। ठीक। तो कंपनियों के अंदर बहुत सारे मामला हो जाते हैं। सही। और कंपनियों का निज़ाम मजबूत बनने की ज़रूरत होती है। सेल्समैन भी गलत कर सकता है, दुकानदार भी गलत कर सकता है। ये मामला है एक इनफिरादी नोयत का। जी। एज पर केस इस मामले को हैंडल करने की ज़रूरत है। शरीयत की तालीमात बड़ी वाज़ेह हैं। मैंने अर्ज़ किया कि जहाँ खरीदो फरोख्त सिखाई गई है, जी, उसके तरीके सिखाए गए हैं, वहाँ हर चैप्टर के अंदर ये बात ज़रूर है, अगर इन बातों में तनाज़ा पैदा हो जाए तो उसका तस्फिया कैसे होगा। ठीक है। फ़िक़्ह इस्लामी किसी जो है वो जमहूत का नाम नहीं है, सही, हल मौजूद है। सही। मतलब इनका भी जवाब हो गया। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। जी। काम तजारत सिलसिले में मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल ये है, चंद अफराद ने आपस में मिलकर कमेटी डाली हुई है 5-5 हज़ार माहाना की, और वो उसके प्राइस बांड खरीद कर रख लेते हैं कि जब इनाम निकलेगा तो वो इनाम सब तकसीम कर लेंगे आपस में, और ये जो कमेटी के पैसे हैं किसी को भी माहाना दिए नहीं जाते, लेकिन उज़्र की वजह से दिए भी जा सकते हैं। तो इस तरह से पहले फर्द को कमेटी दे दी गई। अब उसने कमेटी भी ले ली है, 3 कमेटियों में वो शामिल हुआ था, 15,000 रुपया दिया था और वो कमेटी ले चुका है। जाहिर है कि 8-10 अफराद शामिल हैं, वो ज़्यादा पैसे ले चुका है। तो अब उसने इस एग्रीमेंट को, कमेटी को ख़त्म कर दिया है और बाकी पैसे भी नहीं दिए।
शरई रहनुमाई फरमा दीजिए, ऐसा करना कैसा है? सवाल आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि आप जो कमेटी डाल रहे हैं उसके अंदर जब भी रकम खुलती है उसके प्राइस बॉन्ड लेकर रख लेते हैं। जी। सवाल ये है कि कमेटी तो एक महदूद वक्त के लिए होती है, यानी ऐसा होगा कि साल चलेगी, 2 साल चलेगी, एक तो दिन आएगा ना उसके खत्म होने का। जी। उस वक्त क्या होता है? ठीक। जो जिनमें पैसा मिलता है उसके अंदर तो कमेटी खत्म हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ जो प्राइस बॉन्ड लेकर रखे हैं, एंड आ गया, आखिरी दिन आ गया, तो फिर क्या होगा? ठीक। ये बात इनकी बात से वाज़ेह नहीं है। सही। दूसरी बात ये है कि प्राइस बॉन्ड लेकर रखना एक जुदागाना मुआहदा है। ठीक है। सब आपस में रकमें जमा करते हैं एक बाहम रजामंदी के साथ। इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि पैसे वगैरह मिलाकर ये लोग कोई चीज़ खरीद लें। ठीक। गुंजाइश है। सही। लेकिन किस माहौल में खरीदते हैं ये वाज़ेह नहीं है। ठीक। कोई जबरी माहौल है, कोई इख्तियारी माहौल है, बाहम रजामंदी है, नहीं है। लेकिन जो इनका सवाल है उसका प्राइस बॉन्ड से तो कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हम ये बात बयान नहीं कर रहे कि इनका ये सारा अमल जायज़ है या नाजायज़ है, क्योंकि इसकी तफसीलात हमारे सामने नहीं है, पस मंज़र भी हमारे सामने नहीं है। ठीक है। मुफ्ती असल सवाल का जवाब ये है कि जिस आदमी ने एक कमेटी कुछ महीनों के पैसे भरे, पहली कमेटी ली, दूसरी ली, तीसरी ली, ठीक है, और सारे पैसे लेके गायब हो गया। सही है। इस बात में किसको इख्तिलाफ होगा? जो उसने जायद रकम ली है वो दीगर अफराद की मिल्कियत है। ठीक है। तो वो उस पर कर्जा है। ठीक है। वाजिबुल अदा है। ठीक है। उसको वो रकम वापस करना होगी। सही। तो उसके ऊपर तो ये हुकूकुल इबाद मौजूद है, यानी वो माली जो हक दूसरों का है, दूसरों की रकम है, दूसरों की मिल्कियत है, ठीक है, उसका वापस करना शरन के जिम्मे लाजिम है। लाजिम। ठीक है। मतलब कुछ तहरीरी सवालात भी हैं कि किसी ने वसीयत की कि मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जो कफन दफन के इंतज़ामात हो वो मेरी ही पैसों से, मेरी ही रकम से किए जाए, लेकिन हुआ है कि जब इंतकाल हो गया तो किसी और ने वो इंतज़ामात कर दिए, तो अब इसका क्या हुक्म होगा? इसने जो वसीयत की थी पैसों के हवाले से, तो इसको कैसे तरकीब बनेगी? देखिए, आम तौर पर तो यही होता है कि कफन के जो इंतज़ामात, यानी पहला हक तो हर आदमी का यही है, उसके माल से ही पूरे किए जाएं। जी। लेकिन हमारे यहाँ मुरव्वत और अखलाकी जो फ़राइज़ हैं उनको सामने रखते हुए जी कोई ना कोई इसमें हिस्सा मिलाता है और वो अपने तौर से कर देता है। जी। तो बहरहाल इसकी गुंजाइश तो मौजूद है। ठीक है। लेकिन वसीयत को तरजीह देनी चाहिए थी। सही। हो सकता है कि वो इस खदशे के पेश नज़र कह रहा हो कि ये ना हो कि जो अपने पैसे मिलाए उसका माल हलाल का ना हो। ठीक है। मेरी हलाल की आमदनी है, मैं चाहता हूँ कि मेरी हलाल की आमदनी से ही मुझे कफन दिया जाए। ठीक है। ये मेरे जो कब्र वगैरह के मसाइल पूरे किए जाएं। ठीक है। और जो विरासत और तरके के मसाइल हैं उसके कवायद भी यही कहते हैं कि मैयत का जो माल है जो उसने छोड़ा है जी, सबसे पहले कफन दफन के अखराजात उससे पूरे किए जाएंगे। ठीक है। लेकिन कोई शख्स अपने तौर पर कर देता है जी, तो बहरहाल गुंजाइश तो है। ठीक है। अगली कॉल दीजिए। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ वहाँ का ठेकेदार बहुत ज़्यादा कम रेट देता है। इस बारे में मैंने उससे बात की तो वो कहता है कि मैंने आपको रेट की बात करके फिर काम पे रखा है, आप चाहो तो कहीं और लग सकते हो। और अब ये कि मजबूरी के तहत वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि फिलहाल कहीं पर जॉब नहीं मिल रही। तो इस तरह ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा मुनाफा रखना ये शरीयत में जायज़ है या नहीं? वो कहता है कि शरीयत में जायज़ है, मैंने आपको रेट दिए हैं, आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो। लेकिन एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तो मजबूरियों का फायदा उठाना है। ठीक है जी। देखिए, हमारे दुनिया का एक निज़ाम है, उस निज़ाम के अंदर कुछ हकाइक होते हैं, हकाइक का सामना करना चाहिए। अगर आप काम जानते हैं तो अब बहरहाल इतना तो है कि आपके अंदर एक एतबार से तो कुछ कमी है कि आप काम जानने के बावजूद पीआर नहीं बना पा रहे। अपने प्रोफेशनल ताल्लुकात, जो आपके डिपार्टमेंटल ताल्लुकात होते हैं, एक फैक्ट्री में काम करते हैं, आप चाहते हैं कि बस इसी पे उम्र गुजार दूं। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि बहुत सारे ठेकेदारों से अपने ताल्लुकात असबाब बनाना पड़ेंगे, ताल्लुकात बनाएं, अपना काम दिखाएं, कुछ रेट लें, कुछ मिलें जुलें। एक ही शख्स के साथ आप बंधे हुए हैं तो वो जैसा है
उस तरीके से आपके साथ मामला करेगा। वो बुरा है, हम ये नहीं कह रहे जी। उसने अपनी एक पेशकश दे दी आपको ठीक है कि भाई मैं इतने में काम लूंगा आपसे, ठीक है, वो अपनी जगह पर सही है। तो उसका अमल दुरुस्त है अपनी जगह मार्केट कंपटीशन यही होती है ना पर। जी कि 4 दुकानें होती हैं, मिसाल के तौर पर कोई माल बेचने वाला है, वो एक ही दुकान पे चला जाए और जाकर कहे कि जी बस तुम ही माल खरीद लो, मैं किसी और को नहीं बेचूंगा, सही, और वो जैसा भी रेट देगा खरीदना पड़ेगा। सही है, इसके बजाय 4 दुकानों पे जाता है ठीक है, और फिर फैसला करता है कि मुझे किसको बेचना चाहिए। इनके पास ये इख्तियार है। सही है, दुकानदार के पास ये इख्तियार है कि वो अपने पैसे जो हैं वो बताएं जितने की वो समझते हैं कि हमें ठीक है। करनी चाहिए। जो ऑफर मुनासिब समझे। यही मामला ठेकेदार का है। ठीक है अब ठेकेदार बता देता है कि जी मैं इतने का जो है वो काम आपसे लूंगा, जी, तो अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा तो बहरहाल करना तो पड़ेगा, ठीक, नाजायज तो नहीं कहा जा सकता, ठीक है, लेकिन कोशिश जारी रखें। दिगर जो है वो लोगों से भी रब्ता करें, दिगर मतलब जायज़ काम अगर है तो जायज़ काम जहाँ से भी मिले ठीक है, करना चाहिए। ठीक है। मुफ्ती भाई, इनको तो मदनी फूल आपने दिए, ये जो लोग रखते हैं ठेकेदार वगैरह होते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं जो इस तरीके के अफराद को रखते हैं, इनको कुछ रियायत करनी चाहिए, कुछ ख्याल करना चाहिए। एक तो देखें, आपने एक बात फरमाई कि मार्केट ट्रेंड है और यही कंपटीशन है, ये कारोबारी इस्तिलाहात सारी अपनी जगह हैं, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते अखलाकियात के हवाले से। असल में देखें होता ये है कि बाद का ठेकेदार कुछ छोटा सा होता है, ठीक है, और वो भी बराह रास्त खुद की वर्थ नहीं होती। बराह रास्त माल जो है ना वो असल पार्टी को नहीं बेच रहा होता, सही, 4 हाथों से मजीद गुजरना होता है, सही है, तो उसके पास कैपेसिटी नहीं होती, सही, मजबूर होता है, वो खुद मजबूर होता है, खुद मजबूर होता है। ठीक है, बाद औकात एक ठेकेदार ऐसा होता है कि जिसके और पार्टी के दरमियान वास्ते कम होते हैं, सही है, उसको नफा ज्यादा मिल रहा होता है। ठीक है, तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जिसमें चंद अफराद ही अमीर ना हो, ठीक, मजदूर को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उसको रिलीफ दिया जाए। ये सदका नहीं है और सिर्फ ये नेकी नहीं है, ये भी नेकी है। आप बतौर इनाम के उसको दे दें, बतौर सदका के उसको दे दें, जी, मुश्किल में उसकी मदद कर दें, ये भी नेकी है। जी, लेकिन ये भी एक नेकी है कि आप जो उजरत तय कर रहे हैं वो थोड़ी इसलिए ज़्यादा तय करें कि एक पर्दा पोशी के साथ उसकी मदद भी हो जाए। ठीक, ये भी एक नेकी का मौका तो है, ठीक है, लेकिन ये एक मुस्तहब नेकी है, नफली नेकी है। वो करना चाहे तो करे, तरगीब मौजूद है, फ़वाइद मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन वो ऐसा करे ये लाजमी तो नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर लाजिम नहीं है जी, ठीक है। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना दे, एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना दे।